नमस्कार। मैं आज इस वेबिनार में आए हुए सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। आज का हमारा वेबिनार जो है वो हाउ टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इस विषय पर है। और ये विषय देखने समझने में शायद उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, बट वास्तव में जिंदगी जीने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, जिंदगी को जीने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और उन चैलेंजेस का क्या उचित समाधान है, क्या हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो इस विषय पर आज हम लोगों ने ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है और मुझे लगता है कि ये वेबिनार जो है वो आपकी जिंदगी के लिए जरूर एक माइलस्टोन साबित होगा, जो आपकी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक हो। ये वेबिनार राजेंद्र सिंह स्मृति संस्थान द्वारा आयोजित किया जा रहा है। राजेंद्र सिंह स्मृति संस्थान का इनकॉर्पोरेशन 2018 में हुआ था, which was in memory of Professor Rajendra Singh. This organization is involved in patriotic activities among youth. This is spreading education for good human being, also popularizing the science among youth and encouraging science research for rural Bharat. It is promoting science application for masses. So this is the website of the organization, and this is the phone, this is the email address, and this is the phone number. Anybody who want to know more about the organization can contact on these numbers. This webinar is being sponsored by Rail EduTech Private Limited. The objective of the company is to promote courses for employment and upskilling, promotion of railway courses for graduate engineers and diploma engineers. It is offering data, big data, cloud computing and cyber security courses from 1st of April 2023 and promoting industry automation courses. This is also promoting entrepreneurship program for the youth. This is the website of the organization and this is the email address of the organization. This is the phone number. Anybody who want to know more can contact on these numbers. This webinar is also supported by some organizations, that is Human Unity Movement. This Human Unity Movement is helping the needy people from all walks of life, helping in protecting child and childhood, helping in safe environment. It is also helping protecting rights of the people, awareness of the legal literacy, and counseling for the marriage dispute and harassment. This is the email address of the organization and this is the phone number. Anybody who want to know more can contact on these numbers. We are highly thankful to Dr. Rashmi Soni, who kindly agreed to deliver this program. Dr. Rashmi Soni is a licensed NLP and emotional intelligence practitioner. She is a life skill coach and personality development trainer. She is also a state counselor for COVID-19 for UP by UNICEF and UP government. She has been counselor. She is counselor for Women Power Helpline 1090 by UP government, UNICEF and UP Police. She is at the moment, she is professor and head of Department of Education in Sri Jai Narayan Postgraduate College, Lucknow, affiliated to Lucknow University. We welcome to Madam Rashmi Soni on this occasion. One more thing we want to announce: anybody who is who are attending this course will get this participation certificate after they fill up the feedback form, which shall be sent to their registered email ID and WhatsApp number. All the people who are attending this program will also get a copy of the e-book, which is written by the Commander V.K. Jetli, We Can. So my request to all of you is listen carefully the webinar and answer few questions in your feedback form and get rewarded by certificate and the book. Thank you very much. I welcome you, Madam Rashmi Soni. Thank you very much. तो लड़की ने कहा क्या देख रही हूँ कि अंडे उबल गए, आलू उबल गए, कॉफी बन गई, और क्या मैं देख रही हूँ? कहते नहीं, छू कर देखो। तो जब आलू उसने छुए तो आलू बिल्कुल गल गए, मैश हो गए थे, और अंडे देखा तो अंडा बहुत हार्ड था, और कॉफी एज यूजुअल उसने स्मेल करी। तो कॉफी का टेस्ट और कॉफी की स्मेल से आप सब वाकिफ हैं कि कितनी रिफ्रेशिंग होती है। हालांकि मुझे कॉफी पसंद नहीं है, बट स्टिल कॉफी की स्मेल बहुत रिफ्रेशिंग थी, कॉफी का कलर बहुत सुंदर था। तो द गर्ल सेड, व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव विद दिस एक्सपेरिमेंट? So the father said, and now I want all of you to listen very carefully. Father
told the girl कि जब आलू जो था, जब पानी में गए, उसके पहले आलू बहुत हार्ड थे, और जब वो उबले पानी में गए और खूब उबाले गए तो वो कमजोर पड़ गए और वो मैश हो गए। उन्होंने अपना हार्ड कवर या वो जो उनका हार्ड जो नेचर था उन्होंने छोड़ दिया एंड इट बिकेम वीक। और अंडों के साथ क्या हुआ कि अंडा जो था उसका कवर जो होता है बॉईल होने से पहले सॉफ्ट होता है, राइट? वो अंदर उस एग योक को जो है वो प्रोटेक्ट जरूर करता है, बट इट्स कवर इज वेरी थिन, वेरी सॉफ्ट, वेरी डेलिकेट, राइट? मगर जब वो पानी में, उबलते पानी में जब जाता है तो क्या होता है, वो हार्ड हो जाता है, उसका कवर हार्ड हो जाता है, यहाँ तक कि अंदर का उसका एग योक भी हार्ड हो जाता है। एंड व्हाट हैपेंस विद द कॉफी? कॉफी जो होती है जब आप उबले पानी में डालते हैं तो वो अपना रंग छोड़ देती है, पानी के साथ मिल जाती है, खुशबू फैलाती है और बढ़िया टेस्ट आपको देती है। सो नाउ द लेसन इज, ये बॉइलिंग वाटर जो है वो परिस्थिति है। परिस्थिति, प्रॉब्लम सेम थी तीनों चीजों के लिए, राइट? द सिचुएशन वाज द सेम फॉर ऑल द थ्री ऑब्जेक्ट्स, बट द रिएक्शन या तीनों का जो आउटकम था, कॉन्सिक्वेंसेस थे, या तीनों का जो सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका था वो डिफरेंट था। आलू ने अपनी हार्डनेस को छोड़कर वो कमजोर पड़ गया, टूट गया, राइट? अंडा जो था वो बहुत ज्यादा हार्ड हो गया, और जो कॉफी था वो पानी में मिलकर, दैट मीन्स सिचुएशन और परिस्थिति में मिलकर उसने खुशबू बिखेरी और उसने बढ़िया टेस्ट दिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, सेम हैपेंस विद अस आल्सो इन आवर लाइव्स। हमारे जीवन में परिस्थितियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, संघर्ष आते हैं, मगर नाउ इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हम आलू बनते हैं, कि हम अंडा बनते हैं, कि हम कॉफी बनते हैं। और चॉइस किसकी है? हमारी, राइट? लाइफ इज अ जर्नी, ये जीवन एक यात्रा है बिटवीन टू ब्यूटिफुल लेटर्स, अल्फाबेट्स, एंड दोज आर बी एंड डी। बी स्टैंड्स फॉर बर्थ एंड डी स्टैंड्स फॉर डेथ, राइट? जीवन या जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा, किसके घर पे होगा, उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। आई होप यू ऑल एग्री विद दिस, राइट? हम कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, किसके घर पैदा हुए, कौन हमारे माता पिता, कौन हमारे भाई बहन, वी हैव नो चॉइस, वी हैव नो चॉइस। सो द बर्थ इज नॉट इन आवर कंट्रोल। सिमिलरली डी स्टैंड्स फॉर डेथ, हम कहाँ मरेंगे, कहाँ जाएंगे, कब हमारी मृत्यु होगी, द डेथ, मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं, right? But between these two beautiful letters, alphabets B and D, हम सब alphabets जानते हैं ना, ABCD, B और D के बीच में क्या आता है? The letter, the alphabet C, and C stands for the choice, correct? Choice मतलब हम क्या choose करते हैं, what are we choosing in our lives? हम अपने जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं, हम अपने जीवन को किस ओर ले जाना चाहते हैं, हम अपने जीवन में किस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, हम अपने जीवन में अपने चैलेंजेस को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने संघर्षों को हम किस तरीके से हैंडल करना चाहते हैं। क्या हम टूटकर बिखर जाना चाहते हैं? क्या ये हमारी चॉइस है? या हम स्ट्रांग होके निकलना चाहते हैं इन परिस्थितियों में, करेक्ट? या फिर हम इस तरीके से उन परिस्थितियों में, उन परेशानियों में घुल मिल जाना चाहते हैं, उन्हें अपना लेना चाहते हैं, उनमें एडजस्ट हो जाना चाहते हैं कि हम दूसरों की जिंदगियों को भी हम प्रभावित करें पॉजिटिवली, एक सकारात्मक रूप में हम दूसरों की जिंदगियों को भी प्रभावित करें, दूसरों की जिंदगियों में भी हम खुशियां बिखेरें, दूसरों की जिंदगियों में भी हम पॉजिटिविटी लेकर आए। नाउ द चॉइस इज योर्स, द चॉइस इज आवर्स, राइट? अब मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, हम लोगों की मात्रा बड़ी कम है, मात्र 14 लोग हैं हम लोग, और मैं आशा करती हूँ कि जितने लोग यहाँ ज्वाइन किए हैं कृपया अपने अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए, इफ यू डोंट हैव एनी नेटवर्क प्रॉब्लम। बिकॉज देखिए ऑनलाइन एजुकेशन में, और जो ये विषय है ना, जब इमोशंस की हम बात करते हैं, थॉट्स की बात करते हैं, फीलिंग्स की बात करते हैं, तो आपका चेहरा और चेहरे का एक्सप्रेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। So I, as a speaker, I want to see your facial expressions, especially of my students, right? Because आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं, how to take charge of your life, ये विषय
दिखने में बहुत सिंपल लग रहा होगा, बहुत जिसको कहते हैं ना बड़े आम भाषा में ऐਵੇਂ ही लग रहा होगा कि यार ये क्या है, कुछ अच्छा सा टॉपिक होना चाहिए था, हम इंटरव्यू कैसे क्लियर करें, और हम अच्छा एक अच्छे स्टूडेंट कैसे बने, और हम अच्छे करियर में कैसे आगे बढ़े या क्या करें। तो ये कौन सा टॉपिक है मैडम, हाउ टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। हम अपना जीवन जी तो रहे हैं, यस ऑफ कोर्स हम सब अपना जीवन जी रहे हैं, बट हाउ आर यू लिविंग योर लाइफ। कुछ सवाल हैं जिनको आप अपने मन में चिंतन मनन आज करेंगे और खुद को जवाब देंगे। वी ऑल आर लिविंग आवर लाइव्स, हम सब अपना जीवन जी रहे हैं। जीवन जीने के लिए है, जब तक आखिरी सांस नहीं आती है तब तक हमें जीते रहना है, मगर हम इस जीवन को जी कैसे रहे हैं। आर यू ऑल हैप्पी विद योर लाइव्स? आर यू सैटिस्फाइड विद योर लाइव्स? डू यू फील कॉन्फिडेंट इनफ? Do you feel in control of yourself when your emotions are very high? You must be getting angry, गुस्सा हम सबको आता है. You must be getting irritated, irritation हम सबको होता है. You must be getting frustrated, frustration हम सबको होता है. Correct? You must be getting disappointed, disappointment हम सबको होता है. Correct? Grief हम सबको होता है. दुख, तकलीफ हम सबको होती है, कष्ट हम सबको होता है. करेक्ट? लेकिन क्या आप इन नेगेटिव इमोशंस, नाउ आई एम सेइंग नेगेटिव इमोशंस क्यों कह रहे हैं, अभी उसका भी जवाब आपको मिलेगा. क्या हम इन नेगेटिव इमोशंस में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं, इनमें से निकल पाते हैं आसानी से? खुद के अंदर समाकर, खुद से बातचीत करके, या ये हमको ये इमोशंस इमोबिलाइज कर देते हैं? वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, प्लीज लिसन, नोट इट डाउन एंड थिंक अबाउट इट. इमोबिलाइजेशन. यस माय डियर फ्रेंड्स, हम सबके जीवन में कभी कभी ऐसे वक्त आता है, ऐसे इमोशंस आते हैं जब हम बिल्कुल नॉन फंक्शनिंग मोड में आ जाते हैं. करेक्ट? हमारा दिमाग काम नहीं करता, हमारी फीलिंग्स काम नहीं करती, हमारा कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हमारा फोकस खत्म हो जाता है, और हमें लगता है कि जीवन बर्बाद है, जीवन बेकार है. व्हाट एम आई अप टू? मैं कहां जा रहा हूं, मैं क्या कर रही हूं, व्हाई एम आई लिविंग? और कुछ लोग तो इस हद तक आ जाते हैं, इस मुकाम पे आ जाते हैं कि वो अपना जीवन अंत करने पर खड़े हो जाते हैं, उस लेवल पर आके कि नाउ नथिंग रिमेन्स. Correct? So there is mild to moderate to extreme to severe levels. हमारे थॉट्स का, हमारे इमोशंस का और हमारी फीलिंग्स का. करेक्ट? सो नाउ विथ today's सेशन या इन today's सेशन आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देंगे जिससे आपको मदद मिलेगी. बिकॉज यू एज स्टूडेंट्स, आई नो वेरी वेल कि हम सब जीवन के इस मुकामों से गुजरते हैं, आज भी गुजर रहे हैं. कभी मार्क्स अच्छे नहीं आए तो हमें लगता है आई एम अ फेलियर, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, जीवन बेड़ा गर्क है. एक मार्क्स अच्छे ना आने पर, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन होने पर, करेक्ट, रिलेशनशिप नहीं बना, किसी के साथ अच्छा नहीं निभा, राइट, वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते, तो लगता है जीवन खत्म. करेक्ट? या तो लगता है कि अपने आप को हम दोषी ठहराते हैं, फीलिंग गिल्टी, ब्लेमिंग आवरसेल्व्स, जजिंग आवरसेल्व्स, start evaluating ourselves, I am bad, I am bad, I am bad, I am good for nothing. Or in other words, या दूसरी तरफ we start blaming the other person. You are bad, you are wrong, it is because of you that I am here, it is because of you that I am landing here. Correct? So ये सारी दिक्कतें, ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी जद्दोजहद हम सबके जीवन में है बेटा. एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आज इस प्लेटफॉर्म के इस तरफ, मी एज ए स्पीकर, मी एज ए रिसोर्स पर्सन, प्लीज डू नॉट एवर थिंक
कि इस तरफ जो इंसान बोल रहा होता है वो कोई भगवान है। हम में से कोई भी भगवान नहीं है, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, करेक्ट। हम एक पुतला है, एक मिट्टी के ढांचे हैं जिसके अंदर हम सब के अंदर थॉट्स होते हैं, इमोशंस होती हैं, फीलिंग्स होती हैं। जितना आप इन चैलेंजेस से गुजरते हो बेटा, उतना हम भी अपने अपने चैलेंजेस से गुजरते हैं, एवरी डे, एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, करेक्ट। माई लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। मेरी जिंदगी कोई गुलाबों का बिस्तर नहीं है कि आज यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे या इस मुकाम पे आके अगर हम इतने इतने ऐसे टॉपिक पर अगर हम बात कर रहे हैं, या मी एज ए साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर आई एम हैंडलिंग पीपल्स प्रॉब्लम्स एंड डज नॉट मीन दैट आई डोंट हैव प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ। आई टू हैव प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ, राइट। बट important thing is how you are taking charge of your problems and your challenges, how you are handling them, how you are आप कैसे उनके बारे में चिंतन कर रहे हो, मंथन कर रहे हो, कैसे आप उनको रिजॉल्व कर रहे हो, कैसे इन कॉन्फ्लिक्ट से, उन प्रॉब्लम से निकल के बाहर आ रहे हो, राइट। तो आप सब, मुझे लगता है कि आप सब के अंदर वो शक्ति है, करेक्ट, वो क्षमता है। मगर होता क्या है कि हम अपने जीवन में अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पाते, अपनी काबिलियत को पहचान नहीं पाते, उनका यूज, हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है मगर हम लोग बहुत बहुत कम पोटेंशियल यूज करते हैं। ये रिसर्चर्स ने प्रूव कर दिया है, इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी। बड़े बड़े महापुरुष हुए, स्वामी विवेकानंद से लेके और भी बड़े महापुरुष हुए, सबने कहा कि हमारा जितना पोटेंशियल है, जितना इंसान का पोटेंशियल है, हम उसका बहुत कम परसेंटेज हम सब अपने अपने जीवन में यूज करते हैं, राइट। उसका एक एक्सपेरिमेंट अभी कर लेते हैं कुछ सेकंड्स में। आप सब लोग जहां भी बैठे हो अपना पूरा हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, चलो फटाफट, मैं देख रही हूँ। और जिनके वीडियो बंद हैं, गुरु मिश्रा प्लीज ओपन। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? कैन यू ऑल हियर मी? यस मैम। ओके, प्लीज रेज योर हैंड, एवरीवन रेज योर हैंड। प्रियांश, तुम्हारे हाथ कहाँ हैं? हाँ, सब लोग हाथ उठाइए, गुड। अब एक बार और जोर से हाथ उठाइए, और जितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं उतना एक्सटेंड करिए, और ज्यादा, जितना, टू योर अटमोस्ट। ऑलराइट, अब धीरे से हाथ नीचे कर दी। ओके, थैंक यू। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, मगर आप खुद महसूस करो कि जब पहली बार आपने हाथ उठाया, मैंने कहा हाथ उठाओ, तो आपने उठा लिया, भैया हाँ, मैडम ने कहा हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठा लिए। फिर मैंने कहा थोड़ा और ऊपर करो, तो अभी देखने वाला था, सामने होते तो देखने में आता जैसे वो मार्च पास्ट के लिए सैनिक खड़े कर देते ना बिल्कुल लाइन से, तो ऐसे सबके हाथ बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल ऐसे सीधे होते। दैट मीन्स सेकेंड बार में जब आपको हाथ ऊपर करने को कहा गया, तो आपने और ज्यादा अपना हाथ ऊपर किया। इसका मतलब पहली बार में आपने पूरे अपने क्षमता से हाथ ऊपर नहीं किए थे। यस और नो? मुझे अंगूठा दिखा दो, यस और नो? करेक्ट, हाथ ऊपर नहीं किए थे, ढीला ढाला हाथ ऊपर कर दिया था। व्हाई सो? इसका मतलब आपकी क्षमता और थी उठाने की, तो फिर क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं उठाया पहली बार में? अरे कौन करता है? अरे मैडम, क्या इस समय आप क्या काम करवा रहे हैं, है ना? ऐसा लगता है। बट दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट, एंड यू नो what is this known as? This is a Chinese term, चाइना में इसको यूज किया जाता है, and it is known as Kaizen, Kaizen, Kaizen. It's a very beautiful term and a beautiful meaning it has, करेक्ट। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो जा रहे थे, तो रास्ते में चाइना में रुके थे, और चाइना में उन्होंने ये एक काइजन करके एक उन्होंने कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में ये एक प्रोसीजर देखा था। वहां के लोग ये करते थे, आज भी करते हैं, और इससे कितना कितना इंप्रूवमेंट। दिस काइजन सिंपल मीन्स इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट, स्लो इंप्रूवमेंट, धीरे धीरे करके। इसका मतलब ये होता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट जिसको कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वहां पे चाइना में ऑर्गेनाइजेशंस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बड़ी बड़ी कंपनीज में हफ्ते में 15 दिन में एक बार वहां पे मीटिंग रखी जाती है, राइट। और वहां पे सर्कल, क्वालिटी सर्कल कहते हैं उसको, क्वालिटी सर्कल में सब लोगों को बिठा दिया जाता है, और कोई एक इशू ले लिया जाता है। स्कूल का कोई इशू है,
कॉलेज का इशू है, यूनिवर्सिटी का इशू है, उस कंपनी का इशू है, एनी इशू, राइट? और उस पर सबसे जो है ना फिर फीडबैक मांगा जाता है, सबसे मांगा जाता है, पूछा जाता है, बताइए आप इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या सजेशन देते हैं। और छोटे से छोटा सजेशन भी, बड़े से बड़ा सजेशन भी, उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। और जब सारे सजेशंस एक जिसको कहते हैं ना एक झोले में आ जाते हैं, एक बैंक में अकाउंट में आ जाते हैं, फिर उन पर वर्क करके धीरे धीरे करके उस इशू पे काम किया जाता है, एंड अल्टीमेटली दैट इशू इज रिजॉल्व्ड। मगर दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ भारत में, मुझे दुख होता है कहने में, कि यहाँ पर हर आदमी एक दूसरे को गिराने में लगा है। वो कैसे मुझे सजेशन दे सकता है, उसकी क्या औकात है कि वो सजेशन देगा, उसे क्या अकल है, उसे क्या बुद्धि है कि वो इतनी समझ रखता है कि वो इस मामले में वो अपनी अकल लगाएगा, वो अपनी बुद्धि लगाएगा और हमें सजेशन देगा, हमें सुझाव देगा। करेक्ट? मगर हम सब के अंदर इतना पोटेंशियल है, इतनी क्षमता है कि किसी भी लाइफ के प्रॉब्लम और चैलेंज को हम सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट? जरूरत है कि हम ये देखें कि जब कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी चैलेंज आता है, तो हम क्या अपनी पूरी क्षमता से उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं। जैसे अभी आपने अपना हाथ उठाया, फर्स्ट टाइम यू डिड नॉट रेज योर हैंड टू योर फुलेस्ट पोटेंशियल, टू योर फुलेस्ट कैपेबिलिटी, राइट? जब आप पढ़ रहे हो, जब आप तैयारी कर रहे हो, आर यू वर्किंग, आर यू स्टडिंग with your fullest potential that you have to your best? Think about it, think about it. कोई भी काम, आप किताब लिखने का काम कर रहे हो, आप किचन का काम कर रहे हो, आप blah blah blah, any work that you are doing, are you doing to your fullest potential, to your best? Don't answer anyone, answer to your own self, and you will get the answer. And if you get the answer as no, there is some percentage left for me to work more hard to do my best, please, this is the time. Because कल कभी नहीं आता है, कल जीवन में कभी नहीं आएगा. It's now or never. Start working, start putting your best, right? Correct? अब आते हैं हम लोग मेन अपने मुद्दों पर. छोटे छोटे देखिए, छोटे छोटे आज टॉपिक्स हैं, और चाहे तो आप इनके नोट्स बनाते चलिए, कुछ 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 बस खाली पॉइंट्स लिखते चलिए, तो यू विल रिमेंबर इट फॉर योर लाइफ टाइम. करेक्ट? अब दूसरी चीज जो हम आपसे आज बात करना चाहते हैं, देखिए हमारा जो आज के समय में ना हम लोग न्यूरो साइंस की बात करते हैं, न्यूरो साइंस की, हमारे ब्रेन के साइंस की. करेक्ट? और साइकोलॉजी जो है आज न्यूरो साइंस की बात बहुत ईमानदारी से और बड़ी जिसको कहेंगे ना बड़ी तत्परता से पूरी दुनिया में आज न्यूरो साइंस की बात हो रही, और उसके साथ साथ बात हो रही है न्यूरोप्लास्टिसिटी की. नोट इट डाउन, मौका मिले तो इसके बारे में जरूर पढ़िएगा. कोर्स की पढ़ाई पढ़ते रहोगे, मगर कोर्स की पढ़ाई आपको बहुत दूर तक नहीं ले जाएगी, ये याद रखना. जीवन की पढ़ाई आपको दूर तक ले जाएगी. Once again, how you are taking charge of your life, how you are taking charge of your emotions, how you are taking charge, how you are controlling your thoughts, how you are controlling your feelings. This will take you long and afar. पढ़ाई लिखाई आपको डिग्री दिलवा देगी, आपको सर्टिफिकेट्स दिलवा देगी, आपको डिप्लोमा दिलवा देगी, मगर ये आपको जीवन जीना नहीं सिखाएगी. See, I am pausing after my statements because I want you to imbibe these statements inside yourself, my dear friends. Please, अपने अंतर मन तक इन स्टेटमेंट्स को लेके जाओ. ये पढ़ाई लिखाई आपको परसेंटेज दिलवाएगी, आपको डिग्री डिप्लोमा दिलवाएगी बेटा, आपको नौकरी दिलवा देगी. आप बैंक में जाना चाहते हो, आप सिविल्स की तैयारी करना चाहते हो, आप आर्मी में जाना चाहते हो, सब पहुंचा देगी आपको. मगर बेटा हमने खुद देखा है और लोग जानते हैं, आप जानते हो, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े आर्मी कर्नल, प्रोफेशनल्स, बड़े बड़े लोग टूटकर बिखर जाते हैं जब जिंदगी में संघर्ष आते हैं और चैलेंजेस आते हैं. यस और नो? अंगूठा दिखाओ. यस और नो? करेक्ट? वो टूट जाते हैं, वो बिखर जाते हैं, राइट? वो अपने आप को सेव नहीं कर पाते, डिप्रेशन में आ जाते हैं, सुसाइड कर जाते हैं, लोगों की हत्याएं, अपने ही लोगों की हत्याएं कर जाते हैं. व्हाई? वेरी जिसको कहेंगे वेरी क्वालिफाइड, इतने सर्टिफाइड, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री, इतने अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोग, तो फिर ऐसा क्या हो जाता है?
करेक्ट? क्या हो जाता है? ये हो जाता है that they are not in charge of themselves, they are not in charge, they are not in charge of their emotions, of their reactions. My dear friends, now the choice is again yours. मैंने शुरू में बता दिया, B और D तुम्हारे हाथ में नहीं है, only C तुम्हारे हाथ में है. आज आप यहाँ पर ये प्रोग्राम अटेंड करने आए हो, इट वॉज योर चॉइस, यस और नो? जो लोग नहीं आए, ये उनकी चॉइस है ना? ये आपकी चॉइस है. चॉइस इज योर्स. नाउ वंस अगेन इट इज योर चॉइस whether you really want to control your emotions, your reactions. Do you want to be a reactive person or a proactive person? Choice is yours. Do you want to become reactive? कि बस विस्फोटक होना है, किसी ने कुछ कह दिया आप विस्फोटक हो गए. एंड हम अपनी साइकोलॉजी में और बार बार यही कहते हैं, आई एम सीइंग, आई हैव सीन. मैं फिर बोलती हूं, हम दूध के धुले नहीं हैं. आई एम पॉइंटिंग हियर, आई नेवर पॉइंट देयर, आई नेवर पॉइंट, आई नेवर पॉइंट, आई नेवर पॉइंट, आई पॉइंट हियर. ठीक है? I am also a human being with emotions and feelings. हम भी विस्फोटक होते हैं. But now what is the intensity? Check it out, check it out. कि अगर आज की तारीख में, करेक्ट, या आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले, 6 महीना पहले, 1 महीने पहले, आप 0 से 10 के स्केल में अगर 8 नंबर 9 नंबर पर रिएक्टिव थे, विस्फोट बिल्कुल यूं, करेक्ट, आज कहां पर हो? उससे ज्यादा हो, उससे कम, 0 से 10 के स्केल में. प्लीज प्लीज, मार्क्स केवल आपको एग्जाम में नहीं मिलते हैं, और एग्जाम में मार्क्स आपको एग्जामिनर देता है आपकी कॉपी जांच कर. अब वो क्या जांचते हैं, कैसे जांचते हैं, हमको पता है. हम तो साफ बात करते हैं भाई, हम कोई छुपा छुपी बात नहीं करते. मगर असली मार्क्स हम खुद अपने आप को देते हैं बेटा. इससे बढ़कर मार्क्स और कोई नहीं हो सकता किसी भी इंसान के लिए, जो हम अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं. इवैल्यूएट योरसेल्फ हियर एंड नाउ. आओ मेरे साथ मिलकर इवैल्यूएट करो. हम खुद अपने आप को इवैल्यूएट करें कि आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले, 3 साल पहले मैं कहां थी. इन माई इमोशंस, इन माई फीलिंग्स, इन माई रिएक्शंस, एंड नाउ वेयर आई एम. Have I controlled my emotions, my reactions? 0 से 10 के स्केल में, जहां 10 कुछ नहीं होता, ये भी समझ लेना. जो बोले ना हाँ 10, मैं तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता जी, मैं तो बिल्कुल, वो सबसे बड़ा झूठा है, ये समझ लेना. Because emotions, feelings, reactions, thoughts are never absolute, my dear friends. They can never be absolute. कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती, मैं कभी गुस्सा नहीं करती, मैं कभी रिएक्ट नहीं करती, मैं हाइपर नहीं होती. अगर मैं ऐसा बोलूंगी ना, तो मैं सबसे बड़ी झूठी हूं. Are you understanding, my dear friends? I'm sorry. Are you understanding? Yes? तो अपने आप को अभी इवैल्यूएट करो. How far you have come? और अभी इवैल्यूएट करो कि आपके जो नेगेटिव फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके नेचर के, have you ever evaluated them? बैठकर लिखा है, सोचा है, या खाली करियर के ही बारे में सोचते हो? कहाँ जाएंगे, कैसा एग्जाम करेंगे, कैसे पास होंगे? अरे ये सब सोचते रहो यार. 24 घंटा अपन के पास है. 24 घंटा. 24 घंटे में कितने घंटे सोते हो, ये भी चेक करो. अपनी लाइफ का पूरा शेड्यूलिंग देखो. चार्ज ऑफ योर लाइफ में वो सब आएगा बेटा. डिसिप्लिन आएगा, टाइम मैनेजमेंट आएगा, कंसंट्रेशन आएगा. आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? है ना? आपके पूरे दिन का शेड्यूलिंग क्या है? एक्सरसाइज आती है आपके शेड्यूल में? आपके शेड्यूल में योगा, या आपके शेड्यूल में अच्छा न्यूट्रिशन लेना, आपके शेड्यूल में एंटरटेनमेंट, यस, शेड्यूल में एंटरटेनमेंट आता है, नहीं आता है? अब कईयों के एंटरटेनमेंट के साधन अलग होते हैं. लाइक मुझसे पूछो, मेरा एंटरटेनमेंट का साधन है मेरी किताबें. आई फील ब्लेस्ड, आई फील टॉप ऑफ द वर्ल्ड व्हेन आई एम विद माय बुक्स. बट दूसरे कैसे देखते हैं? अरे ये तो बिल्कुल बेकार बोगस किस्म की महिला है, ये तो खाली किताबों में, पता नहीं इनको क्या एंटरटेनमेंट मिलता है. अरे
तो who are you to evaluate my level of entertainment या my way of entertaining myself? Who are you? I know where I am getting entertained. है कि नहीं? है कि नहीं? तो आप अपने 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 शेड्यूल को देखो बेटा। चार्ज होने का मतलब ये होता है कि चार्ज लेने का मतलब है कि पूरे आपके जीवन में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको अल्टीमेटली सक्सेसफुल बनाने वाली हैं, जो अल्टीमेटली आपको हैप्पीनेस देने वाली हैं, जो अल्टीमेटली आपको सेटिस्फाई करने वाली हैं, जो अल्टीमेटली आपको रिलेशनशिप्स पे पॉजिटिविटी देने वाली है, उन चीजों पर आपका कितना कितना बस है, कंट्रोल है, चार्ज है, उसको इवैल्यूएट करो आज के आज। इस सेशन के बाद सबसे पहला होमवर्क ये करना कि अपने नेगेटिव क्वालिटीज को, मेरे स्टूडेंट्स करते रहते हैं, हम करवाते रहते हैं, जो आज नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को पहले आज आप एक नेगेटिव लिस्ट बनाना कि मेरे अंदर ये नेगेटिव क्वालिटीज हैं जिनसे मैं उबरना चाहता हूं, उबरना चाहती हूँ, जिनको मैं कंट्रोल करना चाहती हूँ। आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, मैं लोगों के सामने बात करने में घबराती हूँ, राइट, या मैं रिश्तों को संभाल नहीं पाती हूँ या पाता हूँ, वॉट एवर, करेक्ट, राइट इट डाउन एंड देन उन सब के सामने जितने नेगेटिव क्वालिटीज आप लिखोगे अपने, उनके सामने अपना स्केल बनाओ। वेयर आर यू एट प्रेजेंट? आज की तारीख में कहाँ हो इन पर? 0 पर हो कि 10 पर हो? 10 होता नहीं, 0 होता नहीं, 1 पर हो कि 9 पर? 0 बीइंग एब्सोल्युटली नील, मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाती। कोई भी आएगा कुछ भी मुझे कह दे, देखो कॉलर पकड़ के दो झापड़ लगाऊंगी, दांत बाहर निकल आएंगे कस। 0 और नहीं तो बिल्कुल 10, एकदम साधु महात्मा। कोई कुछ आए, कुछ हो बोल के चला जाए, कुछ भी बोल के चला जाए और हमको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भैया साधु महात्मा कोई नहीं है, नोबडी, प्लीज 10 कोई नहीं, प्लीज हाथ जोड़ के कह रहे, कोई साधु महात्मा नहीं हो सकता। साधु जंगल में है, और वो साधु इसलिए है, ये भी मैं बता दूं, वो साधु इसलिए है क्योंकि उनके इर्द गिर्द उनको कोई स्टिमुलेट करने वाला नहीं है, कोई उनको उत्तेजित, कोई उनको जो है, जिसको आप लोग कहते हो ना अपने शब्दों में, कोई उनको छेड़ने वाला नहीं। तो बैठे अपना ध्यान कर रहे हैं। मगर अगर हमें संसार, या तो भैया संन्यास ले लो और चले जाओ, लेना है संन्यास भी लेना है तो लेंगे कभी, लेकिन अभी जब तक संसार में है, लोगों के बीच है, सांसारिक दुनिया में है, तो अपन को भी यहाँ तकलीफ होती है ना। तो कहां पर हो? 9 पर हो कि हाँ गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, डिसअपॉइंटमेंट होता है, मगर कितनी देर के लिए होता है और कब अपने आप को रिजॉल्व करके फटाफट क्लीन चिट वापस आ जाते हैं, बैक टू वर्क, बैक टू फोकस, बैक टू अटेंशन, बैक टू कंसंट्रेशन। कितना वक्त लगता है? या महीना भर पड़े हैं डिप्रेशन में, हाय वो छोड़ के चली गई, हाय मैं तो फेल हो गया, महीना भर पड़े हैं। हाउ फार, करेक्ट। तो मैंने आपसे कहा था शुरू में नेगेटिव इमोशंस की हम बात करेंगे। यस माय डियर फ्रेंड, नेगेटिव इमोशन हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। गुस्सा जरूरी है, दर्द जरूरी है, पेन इज इंपॉर्टेंट, है ना? क्यों? अब मुझे बताओ क्यों जरूरी है? एक गरम तवे पे हाथ रखने से क्या होगा? जब छोटा बच्चा गरम तवे पर गरम प्रेस में हाथ लगाता है तो क्या होता है? सामने होते ऑनलाइन का तो यही सबसे बड़ा बेड़ा गर्क है। मालूम नहीं कितने साल सिंह सर अब ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन शुरू करिए। अभी सामने होते तो सबसे पूछते ना, कोई अपना जो है ब्लैक स्लेट दिखा देते हो, भाई नाम वाम लिखा हुआ, बस अब क्या पीछे क्या हो रहा है, मेरी बात सुन भी रहे हो नहीं सुन रहे हो, वॉशरूम में बैठे हो, कहाँ बैठे हो, गर्लफ्रेंड के साथ बगान में घूम रहे हो, हमें क्या पता कहाँ घूम रहे हो। एनीवेज नहीं मैम, सुन रहे हैं बातें। सुन रहे हो ना? सुन रहे हैं बातें। यस ओके नहीं मैडम, आपका इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन है, इसको छोड़ के जा ही नहीं सकता आदमी। अच्छा चलिए, थैंक यू वेरी बहुत मच। अच्छा। इवन आई एम ट्रेवलिंग एंड आई एम सिटिंग इन अ कार और यहाँ पे इतनी पानी बरस रहा है,
Still I am trying to log in again and again. बार बार डेटा कट जाता है, बार बार हो जाता है, फिर भी थैंक यू I am सर, really Sir, thankful to you for थैंक यू। this सर मेरे system. यहाँ नेटवर्क नहीं है, मैं सीढ़ी पे बैठ के कर रही हूँ, लाइट भी नहीं आ रही है प्रॉपर। हाँ बेटा, लाइट का इशू, नेटवर्क का इशू है, मगर कोई बात नहीं, ये सारा कुछ आपको YouTube पे अवेलेबल होगा, आप फुर्सत से भी इसको सुन सकते हो। और मेरी इल्तिजा फिर से है कि आप अपने एग्जाम को, कल अगर एग्जाम है तो उसको बेटा ध्यान दीजिए, एग्जाम जरूरी है, अगर कल सर पे एग्जाम है। तो हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, देखो दिमाग से निकल गया, कोई याद दिलाओ भाई। मैम हमको तवे तो की मैम बात हुई थी। हाँ, थैंक यू कन्हैया जी, थैंक यू। तो तवे की बात कर रहे थे कि छोटा बच्चा तवे पे या गरम प्रेस पे हाथ रखता है, तो क्यों जरूरी होता है उसका हाथ रखना? क्योंकि उसको अनुभव होता है तब कि हाँ भाई ये गरम है, और वो तुरंत हटाता है। अगली बार क्या करेगा, उस गरम तवे के पास या गरम प्रेस के पास जाने के पहले वो 10 बार सोचेगा, हाथ लगाने से पहले सोचेगा। दैट मीन्स वो पेन, वो दर्द, वो जलन उसके लिए महत्वपूर्ण थी, इंपॉर्टेंट थी लाइफ में लेसन सीखने के लिए। करेक्ट? तो सिमिलरली हम सबके जीवन में भी बेटा एक गरम तवे पर हाथ रखना जो है जरूरी है, गरम तवे पर हाथ रखो। मगर अगर ये बताओ कि गरम तवे पर हाथ कितनी देर रख पाओगे, तवा जल रहा है उस पर कितनी देर हाथ रख पाओगे? फ्यू सेकेंड्स, मिली सेकेंड आई सपोज, जैसे ही रखोगे तुरंत हटाते हो। करेक्ट? क्यों हटाते हो? क्योंकि ये अभी आपका काम कर रहा है। आई एम कमिंग बैक टू न्यूरो साइंस, न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो बहुत महत्वपूर्ण विषय आज का मैं आपके पास लेकर आई हूँ। और मैं सिंह सर से निवेदन करूंगी कि फिर एक सेशन आगे होगा जिसपे न्यूरोप्लास्टिसिटी पर, न्यूरो साइंस पे हम डिटेल में बात करेंगे, एंड उसके आगे बात करेंगे पॉजिटिव इंटेलिजेंस की। यस माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम ब्रिंगिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट amongst you, and that is of positive intelligence. We have talked about emotional intelligence, we have talked about social intelligence, we have talked about spiritual intelligence, but now what is important is positive intelligence. तो गरम तवे पर फ्यू सेकेंड्स में हाथ रखने पर आप हटाते हो, क्यों? क्योंकि ये काम कर रहा है। आपको मालूम है ऐसे भी लोग हैं जिनका ब्रेन डेड हो चुका है, दैट मीन्स पैरालाइज्ड, हाँ, या जिनका काम नहीं करता, नर्व्स उनके जो है न्यूरो काम, उनका न्यूरो जो है वो उनके नर्व्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, दिक्कत आ गई है, उनको किसी बात का फर्क नहीं पड़ता, या उनको वो जो है सेंसेशंस रिसीव नहीं होते हैं। तो वो क्या होता है, गरम तवे पर भी हाथ रखा हुआ है, हाथ जल जाएगा, छाले पड़ जाएंगे, मगर उनको एहसास नहीं होता। राइट? सो दैट मीन्स द पेन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। करेक्ट? क्योंकि वो पेन हमको इस बात का अनुभव देता है कि हमको आगे एक्सपीरियंस देता है कि हमें आगे उससे बचना है या उससे निकलना है। राइट? फ्यू सेकेंड्स ऑफ पेन, फ्यू सेकेंड्स ऑफ नेगेटिव इमोशंस। तो जरूरत किस चीज की है कि आप कितनी देर तक, देखो पेन आपको मिलता है, गुस्सा आप होते हो, डिसअपॉइंटेड होते हो, फ्रस्ट्रेटेड होते हो, ये जरूरी नहीं है बेटा, ये सब होता है, हम सब के साथ होता है। मगर आप कितनी देर के लिए, फॉर हाउ लॉन्ग यू आर एंग्री, फॉर हाउ लॉन्ग यू आर डिसअपॉइंटेड, फॉर हाउ लॉन्ग आप ग्रीफ में हो, किसी आपके अपने के बिछड़ जाने पर, मर जाने पर, चले जाने पर आप कितनी देर के लिए, फॉर हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी मंथ्स, हाउ मेनी इयर्स आर यू इन ग्रीफ, है ना? तो ये हाउ लॉन्ग जो है ये जरूरी है आपको समझना। आप कितने देर तक, कितने वक्त तक अपने उस दर्द में रहना चाहते हो, चॉइस किसकी है? चॉइस किसकी है? हमारी, है ना? तो अब क्या करना है कि अब हमको सीखना है कि हम इन चीजों से कैसे फटाफट रिजॉल्व करके हम बाहर निकलेंगे। करेक्ट? और उसके लिए मैं आज आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है मेरा, जो मेरा बहुत फेवरेट है, और दैट इज वेरी फेवरेट ऑफ माइन, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ईसीजी। ईसीजी, ईसीजी क्या है? ईसीजी आप सबने सुना है ना? कुछ लोगों ने ईसीजी करवाया भी, मैंने भी करवाया है किसी तरह। ईसीजी तो सुना भाई,
वो क्या जो हार्ट को रीड करने के लिए ईसीजी नहीं किया जाता है, जिसमें yes, लाइनें sir, लाइनें yes, आप देखते हो सीरियल में एक्चुअली यूज किया जाता है। अरे ये मर रहा है, इसको पंप करो, वो देखो ईसीजी, और वो ग्रीन लाइट ऊपर, अरे बिल्कुल प्लेन हो गई और ऊपर जा रही नीचे जा रही, सुना है ना? इलेक्ट्रो, yes, तो क्या बोलते हैं मैम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आई थिंक। करेक्ट करेक्ट Yeah, करेक्ट, थैंक यू पूरू, है ना? तो ईसीजी ये तो मेडिकल साइंस का कॉन्सेप्ट हो गया, मगर अपन ने ईसीजी का कॉन्सेप्ट अलग बनाया है, ठीक है? जो हमारे, अगर हम उसको, ध्यान से सुनो मेरी बात सब लोग, अगर हम ईसीजी कॉन्सेप्ट को अपने अंदर आज इम्बाइब कर लें अभी इसी वक्त जो मैं बताने वाली हूँ, तो यकीन मानिए आपको ईसीजी पीसीजी कराने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? भगवान बचाए आपको ईसीजी से आगे चल के आपको ईसीजी नहीं करवाना पड़ेगा, और आगे चल के एमआरआई भी कभी नहीं कराना पड़ेगा। एमआरआई भी सुना होगा आपने, एमआरआई कराया जाता है, फुल बॉडी भी एमआरआई कराते हैं, किसी पार्ट का एमआरआई कराते हैं, ब्रेन का एमआरआई कराते हैं, है ना? देखने के लिए कि आपके कोई लीजन्स तो नहीं है, आपके कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है आपकी नर्व्स में, आपके भेजे में, आपके उस बॉडी पार्ट में, तो आपको एमआरआई भी नहीं कराना पड़ेगा। आगे जो मैं आपको बताऊंगी उससे अगर आप उन चीजों को फॉलो करोगे तो ना ईसीजी कराना पड़ेगा ना एमआरआई कराना पड़ेगा, भैया एकदम खुशी खुशी जीवन जियोगे बहुत अच्छे से, ठीक? तो आइए पहले ईसीजी का कॉन्सेप्ट समझ लो। नाउ व्हाट इज ईसीजी? मैम सॉरी टू इंटरप्ट बट इट वाज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बिकॉज़ द ग्राफ इज ठीक है, मेडिकल साइंस का आप जानो, वो देख लेना क्या होता है ईसीजी, अभी हम तो साइकोलॉजी की बात करेंगे। तो आइए, तो ई स्टैंड्स फॉर, माय डियर फ्रेंड्स नोट इट डाउन, ई स्टैंड्स फॉर एम्पैथी, करेक्ट? एम्पैथी, EMPATHY, एम्पैथी, सुना है? अंगूठा दिखा के बताओ, ऐसे बोलोगे तो सुना है, ऐसे बोलोगे तो नहीं सुना। एम्पैथी सुना है? सुना है, करेक्ट? नहीं सुना? कन्हैया नहीं सुना? कन्हैया नहीं सुना? एम्पैथी, एम्पैथी। सहानुभूति सुना है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड सहानुभूति? सिंपैथी, सिंपैथी सुना है? सिंपैथी सुना है? पूरू कुछ भी नहीं सुना है? सिंपैथी Yes, सुना ma'am. है? Ma'am, you are able to put the other person's position in yourself. ठीक है, ठीक Can't है, explain it, but I ठीक know. है, ठीक है, ठीक है, अच्छा जा रहे हो, बढ़िया जा रहे हो, थैंक यू। सिंपैथी इज सहानुभूति, ठीक है ना? एम्पैथी इज अनुभूति या समानुभूति, ठीक है? ई स्टैंड्स फॉर एम्पैथी। अब एम्पैथी को समझने से पहले सिंपैथी समझ लो, ठीक है? सहानुभूति समझ लो। आप लोगों ने एक दूसरे के साथ, अपनों के साथ, किसी के साथ सहानुभूति जरूर करी होगी, सिंपैथी जरूर दिखाई होगी। सिंपैथी का मतलब क्या होता है? जब हम किसी के दर्द में जाकर और उसको तकलीफ में जाकर उसके कंधे पर हाथ रख के जब उसको कहते हो हम समझ सकते हैं तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, कहा है कि नहीं कहा है? अरे यार तुम फेल हो गए, अरे चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, चलो अब आगे मेहनत करना, निकल जाओगे, एंड ब्ला 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 ब्ला। किसी के घर कंडोलेंस शोक सभा में गए तो आप देखो उसको क्या बोलते हैं लोग जाके, दे आर सिंपैथाइजिंग विद देम ना, उनको सहानुभूति दिखाते हैं ना कि हाँ भाई हम समझ सकते हैं, बड़ी तकलीफ है, बड़ा दुख है, आपको बड़ा कष्ट है, ऐसा करके। तो दिस इज सहानुभूति। सहानुभूति, सिंपैथी वो होती है जब हम कॉग्निटिव लेवल पर, करेक्ट, जब हम अपने दिमाग के लेवल पर दूसरों की तकलीफ को हम समझ पा रहे हैं, समझ पाते हैं, हम समझ रहे हैं कि तुम्हारे को क्या दुख है। इससे एक हायर लेवल है एंड दैट इज एम्पैथी, समानुभूति, अनुभूति। और इसको कहा जाता है मैं तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारे दर्द को महसूस कर पा रही हूं, आई कैन फील व्हाट यू आर गोइंग, करेक्ट, करेक्ट, मैं महसूस कर सकता हूं, मैं केवल समझ नहीं रहा हूं, मैं केवल एक समझदारी लेवल पर नहीं हूं कि हाँ मैं समझ रहा हूं एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ओ जब ये टर्म्स हम यूज करते हैं ना, ये एक्सक्लेमेशंस हम यूज करते हैं, देन वी आर एक्चुअली सिंपैथाइजिंग। लेकिन जब दूसरे का दर्द, दूसरे की तकलीफ अपने आंखों से बहे, अपने दिल में दर्द हो, दूसरे का दर्द यहां महसूस करो, उसको कहते हैं एम्पैथी, ठीक है? अब हमारी दुनिया में, हमारे जीवन में मुसीबत सबसे बड़ी यही है कि हम
उस लेवल पर हैं आज के सोशल मीडिया के जमाने में बेटा। आई एम सॉरी टू से, बट आज के टेक्नोलॉजी साइंस की दुनिया में हम इतने रोबोट हो चुके हैं, हम इतने मशीन बन चुके हैं कि बेटा ना हम सहानुभूति कर पाते हैं और ना हम जो है अनुभूति कर पाते हैं, ना हम किसी का दर्द समझ पा रहे हैं, ना हम किसी का दर्द महसूस कर पा रहे हैं। बहुत तकलीफ है बेटा इस बात। और जो पूरू कहना चाह रहे थे वो मैं रिपीट करती हूँ। पूरू वांटेड टू से कि जब हम अपने पैर दूसरे के जूते में रखकर जब उसकी तकलीफ को महसूस करते, व्हेन आई कैन पुट माय फीट इन योर, दूसरे के जूते में अपने पैर डाल के महसूस करो। तो आज एक एक्सपेरिमेंट और कर लेना। एक आपको काम दे दिया मैंने नेगेटिव क्वालिटीज लिखने का, स्केलिंग करने का। दूसरा काम ये करना बेटा कि आपके घर में मम्मी है ना, सबके घर में मम्मी होंगे, पापा होंगे। आज आप उनकी सैंडल, उनकी चप्पल, उनके जूते पहन के घर में घूम लेना बेटा थोड़ी देर के। प्लीज डू इट, प्लीज डू इट। आपने कभी दूसरे की चप्पल और जूता पहन के कभी घूमे हो, महसूस किया है कैसा लगता है? यस मैम। अजीब लगता है ना। अरे तुरंत आपकी नजर तुरंत जो है पैरों में जा रही है, मैंने किसकी चप्पल पहन ली यार, वो फील नहीं आ रहा जो मैं अपनी चप्पल पहन के घूमती हूँ। होता है ना। अब आप क्या करना कि आज आंख बंद करके अपनी माँ की, अपनी बहन की, अपने फादर की, अपने छोटे भाई की, बड़े भाई की, अपने फ्रेंड की, कभी कभी अपने टीचर की भी सैंडल जूता पहन के घूम लो। एंड देन ट्राई टू फील, और केवल पहन के छपक छपक ऐसे घूमना नहीं है, आंखें बंद करके उस जूते को, उस चप्पल को, उस सैंडल को महसूस करो, उसके सोल को महसूस करो। एंड बिलीव मी, मैं हवा में बात नहीं कर रही हूं, यू विल बी एबल टू फील इट। अगर आंख बंद करके किसी का जूता पहनोगे ना तो आप महसूस कर पाओगे। आप बहुत सारे वाइब्रेशंस आपको मिलेंगे, बहुत वाइब्रेशंस मिलेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली सीढ़ी है कि अगर आपको अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना है, रिएक्शंस को, तो सबसे पहले अपने अंदर एम्पैथी क्वालिटी को विकसित करने की कोशिश करना शुरू कर दीजिए। और एम्पैथी का मतलब होता है जब हम दूसरे की नजर से उसकी तकलीफ को, उसकी बात को समझने की कोशिश करते हैं, उसके दृष्टिकोण से, उसके पर्सपेक्टिव से, कि वो अगर गुस्सा हो रहा है या गुस्सा हो रही है, उसके गुस्से के पीछे कारण क्या है। घर में बच्चा बहुत हंसी खुशी घूमता है, खिलखिलाता रहता है, तो माँ बाप भी बड़े खुश होते हैं, वाह 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 जी बेटा बड़ा खुश है, बड़ा हंस रहा है, ही हू कर रहा है। जिस दिन वो गुस्सा दिखाने लगता है तो बस पकड़ के मारना शुरू कर देते हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं। बड़ा तपाकी है, बड़ा चैटबैक करता है, बड़ा ये करता है, बड़ा चीखता है, चिल्लाता है, बड़ा गुस्सा करता है, दूसरों की किताबें ले आएगा, दूसरों की चोरी करेगा। अरे क्यों? अगर वो ये कर रहा है, माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट दीज आर सिम्टम्स। अगर कोई गुस्सा है, कोई नाराज है, कोई डिसअपॉइंटेड है, कोई फ्रस्ट्रेटेड है, करेक्ट, तो इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई बड़ा कारण है, कोई रीजन है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स बिहाइंड द अदर पर्सन्स रिएक्शन। करेक्ट, करेक्ट। और किसी ने यहां लिखा, बिल्कुल ठीक लिखा, कि एम्पैथी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड नॉट ओनली अदर्स इमोशंस बट आल्सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ओन इमोशंस। आप अभी जहां पर भी बैठे हो, किन इमोशन से गुजर रहे हो, आपके अंदर कौन से इमोशंस चल रहे हैं, सोचो, किसी को मत बताओ, अपने अंदर सोचो। आर यू हैप्पी, आर यू लिटिल सैड, है ना, आप दुखी हो किसी बात से, आप खुश हो, आप पीसफुल हो, आप स्ट्रेस्ड आउट हो, है ना, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, क्या हो? अपने अंदर सोचो, इस समय कौन सा इमोशंस आपके अंदर हावी है, हाई पर है, हाई पर है। अब अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, सी
पहली सीढ़ी एम्पैथी के लिए, इमोशंस के लिए, अपने इमोशंस को समझने के लिए पहली सीढ़ी है बिकम अवेयर ऑफ योर इमोशंस। तभी कंट्रोल कर पाओगे ना, तभी कंट्रोल कर पाओगे। तो इसलिए जरूरी है कि अपने आप को अपने जीवन में स्पेस देना बहुत जरूरी है। प्लीज माय डियर, अपने आप को जगह दो, थोड़ी प्राइवेट स्पेस दो, लाइफ को थोड़ा पॉज करना सीखो यार। जस्ट गिव इट अ ब्रेक, जस्ट पॉज फॉर फ्यू मिनट्स। मगर हर समय हम इस तंबूरे के साथ लगे रहते हैं। ये ऐसा साथी हो गया हमारा कि हम मरेंगे भी तो ये साथ में हमारे जाएगा, लगता है जैसे ये ऊपर भी जाएगा। ये तंबूरा ऐसा हो गया है, छोड़ता ही नहीं है। कितनी बार गिर गया मगर हाथ में लिया। हम अपनी ही बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले सीढ़ियों से फिसल गए थे, गिर गए। हाँ, ये 2 जगह इसके क्रैक आ गया। तो कुछ लोगों ने मुझे, मेरे जो वेल विशर्स थे, उन्होंने कहा ये क्यों लेके आप घूम रही थी, इसको पर्स में डाल देना चाहिए था। अभी कैसे, इसको कॉन्शियस में भी नहीं रहता है कि ये हाथ में है, बस है, इसको रहना है यहाँ पर। तो why are we not conscious about it? So that means the important thing is, are you conscious? Please my dear friends, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, इनको नोट करिए। नोट करने का मतलब यूं नोट नहीं, अपने अंदर। Are you conscious? Are we aware about what I am thinking at present? मेरे अंदर क्या थॉट चल रहा है? क्या इमोशन चल रहा है? और सबसे बड़ी बात समझ लीजिए, हर इमोशन के पीछे एक थॉट होता है। Behind every emotion, behind every feeling, there is a thought. Thought कहाँ क्रिएट होती है my dear friends? यहाँ होती है ना, यहाँ होती है ना। और इमोशन कहाँ होता है? यहाँ होता है ना। ऊपर क्या है? अपन का भेजा, इंटेलेक्ट, बुद्धि। तो बुद्धि पहले काम करेगी ना, ब्रेन पहले काम करेगा ना, तो थॉट क्रिएट हो जाती है तुरंत। किसी ने आपसे कुछ कह दिया, आपने कहा अच्छा ये देखो ऐसा बोल रही है ये, बस वो थॉट पकड़ ली जाती है। मगर थॉट से इमोशन आया, फीलिंग्स आई, बिहेवियर में आया, उसको कोई नहीं देखता। ये पकड़ लिया, क्योंकि ये पकड़ा तो पहले क्या आया? देखो सब भगवान ने पूरा हमारी बायोलॉजी अच्छी खासी बनाई है भैया, हम ही लोग नहीं समझ पाते हैं। थॉट आया, थॉट से मुंह से आपने बोल दिया, बोला ना, आपके थॉट आया तुम बहुत जल्लाद हो, थॉट आया एक नंबर के, तुम एकदम जिसको कहेंगे कि बॉडम, किसी काम के नहीं हो। अब मुंह से निकाल दिया आपने, किसी को बोल दिया। अब उसने ये बात पकड़ ली, क्योंकि मैं पहले कहने जा रही थी, जो भूल गई थी मैं कह देती हूँ। That man is a meaning making machine, my dear friends. We all make meanings. We all draw meanings. We are nothing but meaning making machine. है ना? हम सब दूसरे की बातों का मतलब निकालने में बैठे रहते हैं। उसने ये कहा, उसने ऐसा कहा, तो उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा इसलिए कहा, उसने मेरे से बात नहीं करी तो क्यों नहीं करी, बड़ी अकड़ में है, बड़ा एटीट्यूड दिखाते हैं, ब्ला 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 ब्ला, एंड द मीनिंग गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और ये स्पाइरल एक विशियस सर्कल बनता चला जाता है, बनता चला जाता है, बनता चला जाता है। और क्या हो रहा है? ना हम उनकी बात समझ रहे हैं, ना वो हमारी बात समझ। तो क्या ये मैटर रिजॉल्व होगा कभी? कभी भी नहीं होगा। हम खुद में उलझे रह जाएंगे, अगला उलझा रह जाएगा, और हम सब उलझे रह जाएंगे। करेक्ट? तो अब जरूरत किस चीज की है? एम्पथाइज करने की, महसूस करने की, फील करने की, कम्युनिकेट करने की, कन्वर्स करने की, समझदारी से बात करने की, समझदारी से काम करने। और उसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। व्हेन यू डू नॉट बिकम इमोशनली फूल, बट यू बिकम इमोशनली इंटेलिजेंट। करेक्ट? और इमोशनल इंटेलिजेंस कहता है कि आप अपने इमोशंस को कितना इंटेलिजेंटली यूज करते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले चीज हमको करना है कि वी हैव टू बिकम कॉन्शियस एंड अवेयर अबाउट आवर इमोशंस, कि मैं इस समय किन इमोशन से गुजर रहा हूं या गुजर रही। बिकम अवेयर, आइडेंटिफाई योर इमोशन, करेक्ट। और आइडेंटिफाई करने के बाद फिर अपने थॉट्स को चेक करना है। माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट चेकिंग योर थॉट्स। ये इमोशन तो आज मेरे अंदर है, मेरे अंदर गुस्सा है किसी के प्रति, तो गुस्सा क्यों है, मैंने क्या थॉट क्रिएट किया है। एक एग्जांपल देते हैं, एक लड़की है सीमा, एक बड़ी कंपनी में काम करती है, ठीक है। उसको कहीं से पता चलता है अपने साथ के लोगों से कि बॉस जो उसका है, जिसके अंडर वो काम करती है, उसके बारे में बहुत बुरा भला कह रहा था कुछ लोगों से ऑफिस में। He has been criticizing her, complaining about her, and बहुत सारे उसकी फॉल्ट्स निकालकर लोगों को बता रहा था। तो when she came to know about this, वो बहुत ज्यादा सैड हो गई, दुखी हो गई, राइट, और अपने बारे में बुरा भला सोचने लग गई। She became very unhappy. She was very happy and she was very happily doing her work. But the moment she came to know that the boss has been speaking all that rubbish about her, तो वो एकदम से she became unhappy. अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर उस लड़की को, सीमा को, कहीं से भी ये पता नहीं चला होता कि उसके बॉस ऐसी ऐसी बात उसके लिए कर रहे हैं, दूसरों से कंप्लेन कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ब्ला 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 कर रहे हैं, तो क्या वो नाखुश, दुखी होती? नहीं होती। क्यों? जब इसे क्यों? पता ही नहीं, उसके माइंड में उसे पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिए इस बात को, बॉस चाहे जो भी कर रहा हो, उसकी तारीफ कर रहा हो, उसकी बुराई कर रहा हो, फर्क उसको इस बात से नहीं पड़ रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसको फर्क किस बात से पड़ रहा है? वो अपने में क्या इंटरप्रिटेशंस ड्रॉ कर रही है, वो क्या थॉट्स क्रिएट कर रही है। कि मैं, उसने तुरंत जब उसे ये पता चला कि बॉस जो है 4 लोगों के आगे उसकी बुराई कर रहा है, उसने क्या ड्रॉ करना शुरू कर दिया कि मैं तो इतनी मेहनत करती हूँ, मैं तो, क्या पता वो क्या क्या सोचे, मैं तो इतनी मेहनत करती हूँ, बॉस ने मेरी देखो बेइज्जती कर दी 4 लोगों के आगे, और पता नहीं बाकी लोग क्या सोच रहे होंगे, और उन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं तो सारा काम सही से करती हूँ, मैं तो ये भी करती हूँ, मैं तो वो भी करती हूँ, वो तो जो भी काम मुझे देते हैं, ब्ला 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 ब्ला, एंड द लिस्ट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, लिस्ट ऑफ हर ओन इंटरप्रिटेशंस। करेक्ट, करेक्ट। तो उसको भले ही पता चलता या ना चलता, लेकिन जब उसे पता चला तो what meanings she has been drawing out of it, what interpretations she has been drawing out of it, that was actually making her unhappy, right? I mean to say, my conclusion is that, my dear friends, these thoughts are very important, and every hour, every half an hour, please make it a point to check your thoughts, check your thoughts. और उसका एक, मुझे नहीं पता, मेरी वर्कशॉप्स होती रहती हैं भगवान की दया से, कई आप जैसे बच्चों के साथ, यूथ के साथ, तो मैं बहुतों के साथ ये शेयर करती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने पिछली बार आपके साथ सेशन में ये शेयर किया कि नहीं, अगर किया तो बहुत अच्छा, फिर से दोबारा रिपीट हो जाएगा। आप जो ये तंबूरा यूज करते हो, बाकी सारे कामों के लिए यूज करो, मगर इसमें एक काम और जोड़ लो बेटा, कि हर घंटे पर, हर आधे घंटे, 1 घंटे पर इसमें एक अलार्म सेट कर लो, प्लीज सेट एन अलार्म। 21 दिन के लिए, मैं जीवन भर के लिए नहीं कह रही, 21 दिन का अलार्म सेट कर लो, हर रोज, हर घंटे पर। अब क्या होगा, हर घंटे पर जब ये अलार्म बजेगा, तो क्या होता है, जब अलार्म बजता है तो सुबह 4 बजे अलार्म बजता है, तो क्या होता है, एकदम से नींद खुल जाती है ना, उसके बाद उसको थप्पड़ मार के बंद भी कर दिया जाता है। आई नो मोस्ट ऑफ यू डू दैट, कि चुप हो जा, भी सो जा, भी सोने दे, है ना। लेकिन हर घंटे पे जब अलार्म बजे, तो आप जब एकदम कॉन्शियस हो जाओगे, अलार्म का मतलब हो जाएगा दैट यू विल बिकम कॉन्शियस, अलर्ट, करेक्ट। और अलर्ट किस बात के लिए होना है, आपको तुरंत अपना पूरा कंसंट्रेशन किस में ले आना है, अपने थॉट्स पे। व्हाट एम आई थिंकिंग राइट नाउ,
माई थॉट्स आर नेगेटिव और माई थॉट्स आर पॉजिटिव। मैं क्या सोच रहा हूं। हो सकता है कि आप किसी के ऊपर गुस्सा दिखा रहे हो, आपके मन में बहुत सारी उथल पुथल चल रही हो, अचानक अलार्म बज जाए, तुरंत सोचो, तुरंत अलर्ट हो जाओ और अपने थॉट्स को चेक करना शुरू कर दो। अरे मैं क्या सोच रहा था, अरे मैं क्यों सोच रहा था उसके बारे में ऐसा, उसने अगर ऐसा किया है, उसने ऐसा बोला है तो क्या कारण था। Why did she or he became so hyper, so emotional, so violent? या मैं ऐसा क्यों हो गया, मैं ऐसा क्यों करने, यू नो, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय डियर फ्रेंड्स। ये अलार्म आपको किस लिए हेल्प करेगा? इट विल हेल्प यू टू बिकम कॉन्शियस, टू बिकम अवेयर, टू बिकम अलर्ट अबाउट योर थॉट्स, एंड थॉट्स लीड्स टू फीलिंग्स एंड इमोशंस। सिंपल फंडा है बेटा। हम जैसा भी थॉट क्रिएट करेंगे अपने जीवन को उसी डायरेक्शन में ले जाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस। सो स्टार्ट गिविंग योरसेल्फ ऑटो सजेशंस। ऑटो सजेशंस बहुत महत्वपूर्ण है। ऑटो सजेशंस, हम अपने आप को क्या सुझाव दे रहे हैं, किस तरीके का सुझाव दे रहे हैं, हर समय अपने आप को किस तरीके के मैसेजेस दे रहे हो। मैं बेकार हूं, मैं बॉडम हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, मेरे से ये नहीं हो पाएगा, मैं ये कुछ नहीं कर पाऊंगी, एक एग्जाम में फेल हो गई, अब मैं क्या एग्जाम दे पाऊंगी, मेरी जिंदगी बेकार है, बर्बाद है, उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। ये सब थॉट्स हैं बेटा, दीज आर ऑल थॉट्स। और फिर ये आपके इमोशंस को लीड करते हैं। दोज इमोशंस, दोज नेगेटिव इमोशंस जिसको आप पकड़ कर बैठ जाते हो, कम आउट ऑफ इट, प्लीज कम आउट ऑफ इट, just leave it, leave it. करेक्ट। ये जिंदगी बेटा बहुत खूबसूरत है, जिंदगी के संघर्ष बहुत खूबसूरत होते हैं। मैं ऑक्सीमोरॉन और पैराडॉक्सिकल विरोधाभास बातें करी हैं मैंने। जिंदगी के संघर्ष बहुत सुंदर होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत मीनिंगफुल होते हैं, बहुत पर्पसफुल होते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम सबके जीवन में बहुत से संघर्ष आए हैं। आपकी जीवन तो अब शुरू हुआ है बेटा, आप लोग तो खिलते फूल हो, और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है आपके जीवन में कभी भी, शाम का वक्त है, कभी कोई ऐसी तकलीफ संघर्ष ना आए। मगर जीवन में संघर्ष बहुत जरूरी होते हैं बेटा। जीवन की सीख सीखने के लिए लाइफ के चैलेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मगर हाउ मच यू आर रेडी टू फेस दोज चैलेंजेस, और उसमें से कितना खिलकर, कितनी खूबसूरती से आप बाहर निकलते हो। जीवन बहुत सुंदर है, जीवन में लोग बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारे हैं, आपके रिश्ते बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे हैं। उनको बना कर रखना है, उनको संजो कर रखना है, उनमें मलाल नहीं पैदा करनी। एक दूसरे को समझदारी से समझकर आगे बढ़ो। जो रिश्ता हाथ में है उसको खूबसूरती से हमें निभाने की कोशिश करनी है। बट आई नो पीपल राइट, जो अपने रिश्ते, अपना जीवन शर्तों पर, कंडीशंस, जजमेंटली, कंडीशनली वो रिश्ते भी निभाते हैं, वो अपना जीवन भी जजमेंट्स के पर, कंडीशंस पर चलाते हैं। अगर मैं ऐसा कर पाया तो ही मेरा जीवन सार्थक होगा। अगर मैंने मर्सिडीज बेंज, इस पूरे जीवन में मर्सिडीज बेंज अगर मेरे पास गाड़ी, या मुझे भैया गाड़ियों का ना शौक है ना मुझे पता है, आपको मालूम होगा यंगस्टर्स को, बेस्ट गाड़ी, जब तक वो मेरे पास नहीं आएगी तब तक मेरा जीवन सार्थक नहीं होगा। या जब तक एक, जिसको कहेंगे कि ऐसी कन्या, ऐसी गर्लफ्रेंड, ऐसा पार्टनर मेरे जीवन में नहीं आएगा जो ब्ला 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 ब्ला, जो मेरे अनुरूप हो, मेरे हिसाब से चले, तब तक मेरा जीवन सफल नहीं है, सार्थक। होता है ना ऐसा, शोमी और अंगूठा, होता है ना। हम अपना जीवन शर्तों पर बेटा चलाने की कोशिश करते हैं, हम दूसरों का जीवन शर्तों पर चलाने की कोशिश करते हैं। अगर तुम मेरे लिए ये करोगे तो ही मैं तुम्हारे लिए ये करूं, और तुम मेरे लिए ऐसा करो
अपेक्षाएं, उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस, शर्तें ये जीवन नरक बनाती हैं बेटा, ये जीवन हेल बनाती हैं। जस्ट गेट आउट ऑफ इट प्लीज, गेट आउट ऑफ इट। आई एम नॉट सेइंग टू बिकम साधु महात्मा, हम में से कोई साधु महात्मा नहीं बन सकता जी, कि हम तो पाक है बिल्कुल, हमारे तो मन में कोई उम्मीदें नहीं, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं। नो, वी ऑल हैव एक्सपेक्टेशंस, हमें दूसरों से उम्मीद होती है, लेकिन बेटा वक्त है कि अब हम उस अपने लेवल को वहां तक लाएं, उस जगह पर लाएं। अगर जीवन में हमें शांति चाहिए, सफलता चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, जो हमारी डिवाइन क्वालिटी है, जो हमारे अंदर ऑलरेडी है। लेकिन बेटा सबसे बड़ी बात पता है क्या है, हमने बचपन से अपने आप को कंडीशन कर रखा हुआ है, कंडीशनिंग कर रखी है हमने। एक ऊंट की कहानी मालूम है? ऊंट की कहानी सुनी है? वैसे मैंने अपने बच्चों को हमेशा सुनाती रहती हूँ। एनीवेज, ऊंट की कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक राजस्थान का एक बड़ा व्यापारी था और उसके पास जो है हजारों ऊंट थे। अब जिसके पास यार ऊंट इतने होंगे तो वो तो कितना लखपति और करोड़पति होगा, है कि नहीं? तो एक वो क्या करता था अपने व्यापार के लिए, बहुत पुरानी बात बता रहे, अपने व्यापार के लिए ऊंटों का काफिला लेके चलता था, शहर शहर जाता था और वहां पे जो है अपना व्यापार करता था। तो एक बार वो ऐसे ही ऊंटों का काफिला लेके निकला, ठीक है। अब उसके उसके कम से कम नहीं तो वो 100 ऊंट या 50-60 ऊंट लेके वो निकला। अब चलते चलते एक शहर से दूसरे शहर जाते जाते उसे रात हो गई, अंधेरा हो गया। अब जब अंधेरा हो जाता था तो वो अपना कैंप लगाता था, बढ़िया तंबू वंबू गाड़ के कैंप, और ऊंटों को उसके साथ, ऊंटों के साथ अपनी रस्सी और स्टैक भी ले जाता। स्टैक समझते हो ना, वो गाड़ कर और ऊंटों को बांध देता था। तो हाँ, खूंटा, यस। और वो बांध देता था सारे ऊंटों को और चैन से सोता था, सुबह फिर अपने ऊंटों को लेकर निकल जाता था। तो ये अपना अंधेरा हो गया, इसने सारे ऊंटों को बांधना शुरू किया। एक खूंटा निकाला, 2, 50, 60 करते करते देखा उसने एक ऊंट बचा रह गया। यार एक खूंटा कम पड़ गया, रस्सी तो है, खूंटा नहीं है। अब यार वो क्या करे? अब वो बड़ा हैरान परेशान कि यार ये एक एक ऊंट मेरे लिए इतना कीमती है, अगर ये ऊंट रात में कहीं भग गया, कहीं चला गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अब मैं क्या करूं, इसे कैसे बांधूं? मैं तो सो भी नहीं पाऊंगा रात में। अब उसने वहां पे गांव वालों को ढूंढना शुरू किया, एक गांव वाले को पकड़ा और उसने कहा भाई मुझे खूंटा मिलेगा? कहता है यहाँ खूंटा वूंटा कैसे, तुम्हारी मेरी मदद करो। कहता है यहाँ पे एक बुजुर्ग चाचा रहते हैं, वहां है, चले जाओ, उनसे तुम्हें मदद मिल जाएगी। वो गया उसके पास, चाचा के पास, बुजुर्ग से थे, और उनसे उन्होंने अपनी दिक्कत कही। अब उस चाचा ने जो सोल्यूशन बताया, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा अरे बेटा तुम काहे परेशान हो, ऊंट को खड़ा कर दो एक जगह और उसका पैर पकड़ के और ऐसे 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 कर दो, बस तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब वो आदमी सोचा ये तो लगता है दिमाग का पैदल, ये क्या बता रहा है, ऐसे 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 कर दो, कैसे ऊंट बन जाएगा? जब तक हमारे पास खूंटा नहीं होगा, जब तक रस्सी नहीं होगी तो कैसे बन जाएगा? अब लेकिन कहा, चाचा ने कहा बेटा विश्वास करो, जाओ बांधो, बंध जाएगा। अब वो गया, उसने ऊंट को पैर पकड़ा, ऐसे ऐसे, बस ऐसे ही हवा में ऐसे 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 उसके पैर के पास किया, और उसके बाद जो है ऊंट को खींचने की कोशिश करी, ऊंट खींचे ही नहीं, ऊंट बंध गया, वही खड़ा हो गया और वो बंध गया। अब इसको तो बड़ा हैरान हुआ, यार ये कौन सा जादू हो गया, मैंने तो ना बांधा, ना खूंटा, ना रस्सी, और बंध गया। अब उसने जो है बड़ा, जब उसको चैन मिला कि ऊंट बन गया, वो सो गया। सुबह हड़बड़ा के उठा कि यार कहीं ऊंट निकल ना गया, और देखा ऊंट वहीं के वहीं खड़ा है। अब उसने जो बड़ा खुश हो गया, सारे ऊंटों को निकालना शुरू किया, 1 ऊंट, 10 ऊंट, 20 ऊंट, 50 ऊंट, 60। अब इस ऊंट की बारी आई, इसने उसको खींचा, चल भाई, और वो चले ही ना, वो अपनी जगह से हिले ही नहीं। अब वो फिर बड़ा दुखी, यार ये क्या हुआ, अब मैं इसको बांधा भी नहीं है, ये तो निकलता भी नहीं है, चलता भी नहीं है, वहीं अटक गया, यार ये खींच ही नहीं रहा। अब वो फिर भागा उस चाचे, भैया तुमने कौन जादू किया, काला जादू, काला जादू हटाओ, मेरा ऊंट हट नहीं रहा। उसको हम मुस्कुराया चाचा, कहता बहुत परेशान होते हो यार, तो उसको बांधे थे? कहता हाँ ऐसा ऐसे बांध दी। अब उसको ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे करके खोल दो, खुल जाएगा, जैसे रस्सी खोलते हैं। वो कहता ऐसे खुल जाएगा? कहता हाँ। अब वो गया, उसने ऐसे 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 उल्टी चक्की चलाई, ऊंट को हिलाया, बड़े मजे से जो है उसके साथ चल दिया। तो कहानी तो यहाँ खत्म हो गई मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन सीख क्या है कि ऐसे ही बिना चेन के, बिना रस्सियों के हमारा भेजा भी जो है ना, ये दिमाग, हमारा मन ये बहुत सी रस्सियों से, चेनों से बंधा हुआ है, इनविजिबल चेन्स। और वो चेन्स कौन सी हैं? वो चेन्स कौन सी हैं? बचपन से जो हमारी कंडीशनिंग हुई है,
बचपन से जो हमको सिखाया पढ़ाया, हमारे पैटर्न्स बनाए गए हैं बेटा, हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में, हमारे बेटे में, हमारे मन में कुछ पैटर्न्स बना दिए गए हैं कि ये तो ऐसा ही होता है, एक लड़के को ऐसा ही होना चाहिए, एक लड़का कभी रो नहीं सकता, जो लड़का रोएगा वो कमजोर है, बेवकूफ है, अव्वल नंबर का वो मर्द नहीं है। और जो लड़की जो है वो जो घर का काम नहीं जानती, बाहर का काम जितना करे, लेकिन उसको खाना बनाना नहीं आता, उसको कपड़े धोना नहीं आता, उसको सिलाई नहीं आती, तो वो तो बहुत ही ज्यादा, वो तो किसी काम की नहीं है। ये एक एग्जाम्पल है। आज आप तमाम एग्जाम्पल्स अपने जीवन में देख लो बेटा। अगर आप 99% नहीं लाओगे, यू आर नॉट इंटेलिजेंट। कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? समाज बोला ना, लोग बोले ना। कौन सिखाया? समाज ने सिखाया ना, लोगों ने सिखाया ना, आपके अपनों ने आपको सिखाया ना। आपके अपनों ने आपको सिखाया ना कि किसी से बात करो तो चिन ऊपर बात करो, सीना चौड़ा करके बात करो, थोड़ी अकड़ के साथ बात करो। किसने सिखाया? समाज ने सिखाया ना, लोगों ने सिखाया ना। करेक्ट? तो ये एटीट्यूड है, एंड दिस इज कंडीशनिंग। दिस इज कंडीशनिंग। इस कंडीशनिंग को, इस चेन्स को आपको तोड़ना है, क्योंकि जब तक आप इन चेन्स को नहीं तोड़ोगे, इन इनविजिबल चेन्स को, इन रस्सियों को अपने से दूर नहीं करोगे बेटा, आप धरातल पर नहीं उतरोगे। और जब धरातल पर नहीं उतरोगे, दूसरों के इमोशंस को और अपने इमोशंस को आप समझ नहीं पाओगे। करेक्ट? तो ईसीजी में ई का मतलब हो गया एम्पैथी, दूसरों के इमोशंस को, अपने इमोशंस को समझना, उनके साथ जुड़ना। सी का मतलब होता है, ईसीजी में सी का मतलब होता है कंपैशन, दया, करुणा। सुना है ना वर्ड कंपैशन? मदर टेरेसा का नाम सुना है? मदर टेरेसा का नाम सुना है, जिनको अब संत की उपाधि दे दी गई, संत की उपाधि दे दी गई। ठीक है? सिस्टर निवेदिता का नाम सुना है? शायद आपने नहीं सुना, जिसको स्वामी विवेकानंद जी आयरलैंड से लाए थे, आयरलैंड से लाए थे हमारे देश की सेवा के लिए। उन्होंने प्लेग जैसी महामारी में, कोलकाता में उन्होंने प्लेग जैसी महामारी में बीच में घुसकर लोगों की देखभाल करी। एक अमेरिकन लेडी, एक इंग्लैंड की लेडी हमारे देश में आके सेवा कर रही है। क्यों? मदर टेरेसा सेवा कर। किसी को मदर टेरेसा की क्वालिफिकेशन पता है? मुझे बताओ। MBA किया था, होटल मैनेजमेंट किया था, BSc PhD करी थी, क्या किया था किसी को पता है? स्वामी विवेकानंद जी ने क्या पढ़ा था, क्या लिखा था, किसी को पता है? चलो ढूंढ लो, मिल जाएगा। मगर कहने का तात्पर्य ये है कि इन लोगों की बेटा डिग्रियां इतनी मायने नहीं रखती हैं, जितना क्या मायने रखता है इनकी क्वालिटीज, इनकी करुणा, इनका दया। यस, नर्सिंग, वेरी करेक्ट। और ये नर्सिंग क्या है? नर्सिंग तो बेटा एक सर्विस है। आप किसी की सेवा कर रहे हो, नर्स कर रहे हो, किसी को नर्स कर रहे हो, राइट? लेकिन नर्सिंग के पीछे भाव क्या होता है? करुणा, दया। क्या वो दया, वो करुणा आपके अंदर है? दूसरों की तकलीफ को देखकर आपका मन व्याकुल होता है, आपके मन तकलीफ में आता है? उसकी मदद करने के लिए क्या आप आकुल व्याकुल रहते हो? कुछ भी, किसी भी तरीके से। जरूरी नहीं कि पैसे से मदद हो, जरूरी नहीं कि आप अपना सामान उठा के उसको दे दो, कुछ भी। एक उसके चेहरे पर स्माइल ला के आप उसकी सेवा कर सकते हो। अगर कोई दुखी है, उसके चेहरे पर स्माइल लो। त्याग की भावना, अपनी चीजों को पीछे रखकर हम दूसरे को प्यार करें, दूसरे को हम उसकी इंपॉर्टेंस दें, दूसरे के चेहरे पर हम खुशी लेकर आए। यस, वेरी करेक्ट। सर्विस, ह्यूमैनिटी, एम्पैथी। सो कंपैशन इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वालिटी। अगर वो हमारे अंदर होगी बेटा, तो कहीं दो राय नहीं है कि हमारे अंदर जो है रिएक्शंस कम नहीं होंगे, हमारे अंदर गुस्सा शांत नहीं होगा, क्योंकि हम दूसरों की तकलीफ को समझ पाएंगे, दूसरों के नजरिए से दूसरे को हम देख पाएंगे। करेक्ट? जो हो गया सी। अब आता है जी, ECG, जी, एंड जी स्टैंड्स फॉर ग्रैटिट्यूड। G stands for gratitude. Gratitude का मतलब कोई बताएगा? What does G stand for? Gratitude का मतलब क्या होता है? हिंदी में gratitude क्या बोलेंगे? हाँ? Being thankful. Gratitude का मतलब हमें
जिसको थैंकफुल होना एक तरीके से, है ना, टू बी थैंकफुल टू पीपल। सबसे पहले टू बी थैंकफुल टू द लॉर्ड, टू गॉड, ईश्वर का सबसे पहले हमें शुक्रिया अदा करते रहना हर क्षण। अगर आप ईश्वर पे विश्वास नहीं करते, कोई बात नहीं। आपको मालूम है स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि द ओल्ड रिलीजन, जो पुराना धर्म था, वो ये कहता था कि उसको नास्तिक कहते हैं जो भगवान पे विश्वास नहीं करता। नास्तिक किसको कहते हैं? जो ईश्वर पे भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता, है ना। लेकिन आज नया रिलीजन ये कहता है, नया धर्म ये कहता है, वो इंसान नास्तिक है जो अपने पे विश्वास नहीं करता। सच अ ग्रेट थॉट माय डियर फ्रेंड। आप ईश्वर पे विश्वास करो ना करो, मगर अपने पे विश्वास करो, खुद पे विश्वास करो। और खुद पे विश्वास करने का मतलब ही है कि मैं ईश्वर पे विश्वास करती हूँ, या उस ब्रह्म, किसी ना किसी डिवाइन पावर पे आपका विश्वास है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय डियर फ्रेंड? यस। तो जरूरत है कि हम सबसे पहले उस ईश्वर का, उस ब्रह्म का, उस पावर का थैंक्स करें जिसने मुझे आज ये अस्तित्व दिया है, ये वजूद दिया है, जो मैं आपके बीच में, जो भी मेरा नॉलेज है, जो भी मुझे अकल है, वो मैं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। कितना बड़ा ईश्वर ने मुझे ब्लेस किया है, राइट? मैं आपसे कुछ सीख पा रही हूँ। द सेकेंड थिंग इज लेट अस थैंक। हाथ जोड़कर हमें उन लोगों का धन्यवाद देना चाहिए जिन लोगों की वजह से आज हम जो है सो हैं, है ना। हमारे पेरेंट्स, राइट, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे गुरुजन, हमारे टीचर्स, जिनकी वजह से आज हम जो है वो हैं, जहां पहुंचे हैं। फिर उन रिश्तों को धन्यवाद दीजिए। आप सबका आज इस प्लेटफॉर्म से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद कि आपकी वजह से मैं हूं। आई एम बिकॉज ऑफ यू। आप नहीं होते, आपने नहीं बुलाया होता, तो शायद आज मैं नहीं होती आपके बीच में। थैंक्स टू सिंह सर, thanks to Siddharth sir, thanks to all my students who are here. It is because of you that I am here, right? हम सबको एक दूसरे का थैंक्स देना चाहिए। Then only you will come down to the, आप एक प्लेन, एक अर्थली लेवल पर आएंगे, आप धरती से जुड़ेंगे, you will be grounded, and to become grounded is very important, my dear friends, to take charge of yourself. यहाँ पे अगर आपको कंट्रोल करना है ना, और मैं एक बात और बता दूं, ये विषय इतना छोटा नहीं है कि मैं 1-1.5 घंटे में इसको पूरा कर दूं। टेकिंग चार्ज ऑफ योर सेल्फ रियली नीड्स एक बहुत विस्तार पूर्ण, एक बहुत व्यापक विषय है। अभी तो मैंने एक छोटा सा बूंद आपको दिया है, छोटा सा अंश, एक छोटा सा दिया है। इस पे बहुत लंबी चर्चा है, बहुत कुछ बताने को है, करेक्ट। तो आज आपको एक ECG का कॉन्सेप्ट दिया, अपने नेगेटिव क्वालिटीज को लिख के इवैल्यूएट करने का आपको होमवर्क दिया है, और एम्पथाइज करने की सीख लेने के लिए सबसे बढ़िया चीज है बेटा कि दूसरे के जूते आज पहनकर घूमना और फील करने की कोशिश करना व्हाट यू आर फीलिंग, और हो सके तो ग्रुप में मैसेज डालना, जरूर डालना, ठीक है। और ECG बता दिया, इन 3 बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज को अपने अंदर लाओ, हर क्षण लेकर आओ। सबसे पहले एम्पथाइज करना सीखो, दूसरा अपने अंदर करुणा और दया पैदा करो, और तीसरी बात है अपने अंदर बेटा थैंक्स गिविंग, शुक्राना, शुक्रिया अदा करने की क्वालिटी पैदा करो, और हर समय अपने चेहरे पर स्माइल, एक प्यारी सी मुस्कान। जरा देखो सबके चेहरे पर मुस्कान। अरे अब तो दादा सब लोग अपना अपना वीडियो खोल लो। आहा, थैंक यू कविता शर्मा जी, क्या बात है, आपके दांत बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अवंतिका कितनी प्यारी स्माइल दे रही है। हर्ष, थैंक यू सो मच, थैंक यू सिद्धार्थ सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रियांश, थैंक यू कन्हैया, थैंक यू वेरी मच। एवरीवन इज लुकिंग वेरी थैंक यू स्वीट, मैम। वेरी स्वीट, गुड, ठीक है। Okay, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Always remember to have a smile on your face. It's a very powerful 5-letter word, SMILE. अगर स्माइल होगा ना चेहरे पर, यू विल टेक चार्ज। एंड नाउ द क्वेश्चन आंसर। यस कन्हैया, यू वांट टू आस्क समथिंग, प्लीज। मैम, मैंने एक बार अपने पापा का जूता पहना था, बहुत दर्द हो रहा था पैरों में। मैंने पैरों फील में किया दर्द है हो रहा मेरे था पापा ना? के। पैरों में दर्द क्यों हो रहा था? जूता छोटा था या जूता बड़ा था, क्या था? छोटा ही होगा। नहीं, जूता हाँ, तो ठीक था, लेकिन उस तरह के जो पापा पहनते हैं जूते, उस तरह के जूते। तो अब आपको जब जूता पहना और उनका दर्द महसूस हुआ कि नहीं हुआ?
आज फिर पहन के देखना। yes. तो आप कहने का मतलब अभी- है कि क्या मालूम आपको कि वो किन किन दर्दों से, संघर्षों से गुजर कर आपको पाल रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। yes, आज ma'am. फिर पहनना Yes. और आज जाके सब लोग अपने अपनी मम्मी पापा भाई बहनों सबको थैंक्स देना। देखो एक ये भी होमवर्क में भूल गई थी। आज सबको हम सब एक दूसरे को आज थैंक्स देंगे। थैंक यू आप मेरे जीवन में हैं। थैंक यू आप मेरे जीवन में हैं। थैंक यू आपने मुझे जो कुछ दिया। आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो थैंकफुल। सारे मलाल एक तरफ, Thank you. सारे दुख एक तरफ, सारा क्रोध एक तरफ, बट आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू हु लव्स मी सो मच, जो मुझे इतना प्यार करता है। करेक्ट। हाँ बताइए बताइए और बोलिए। क्वेश्चंस क्वेश्चंस फीडबैक ओपिनियन एनीथिंग यू वांट टू से। मैम टॉपिक हाँ से जी। आज थोड़ा अलग है मैम। हाँ? मैम पढ़ने में मन कम, पहले ज्यादा मन लगता था पढ़ने में, अब कम लगता है मन मेरा पढ़ने में। फिर वही बात है बेटा, फिर वही बात है। अब मन नहीं लगता मतलब कंसंट्रेशन फोकस नहीं है। क्यों नहीं है, पहले इसका जवाब ढूंढ लो। मुझसे बात कर लेना। आई एम ऑलवेज अवेलेबल, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। मेरा नंबर आप सबके पास है। क्यों नहीं लगता, मेरे- इसका जवाब पहले देखो, अपने अंदर ढूंढो। क्या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या थॉट्स आती हैं। घर से प्रॉब्लम आती मुझे तो फोन घर से डिस्ट्रैक्ट प्रॉब्लम करता है। है, घर से प्रॉब्लम है। यस कन्हैया, घर में प्रॉब्लम है। है ना। अब घर में जो प्रॉब्लम Yes. है हम समझते हैं, अभी आप शायद शेयर नहीं कर पाओगे। मुझसे आप फोन करके शेयर करो बेटा, यू आर ऑलवेज फ्री। आप मुझसे फोन करके बात करो। लेकिन जो घर में प्रॉब्लम है तो उसको देखो समझदारी से, यहाँ से देखो कि मैं उसको कितना कंट्रोल कर सकता। बिकॉज लाइफ में बहुत सी चीजें होती है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते और उसके पीछे अपने मरे जा रहे हैं। करेक्ट। बाकी आप बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। मैम और नंबर बताइए। नहीं है, नंबर मैम नंबर मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9415063105 63105। ओके थैंक यू मैम। हाँ और क्वेश्चन पूछो भाई। हर्ष सक्सेना, आपको कुछ पूछना है या आप अपना ओपिनियन दीजिए, फीडबैक दीजिए। हाउ वाज द सेशन फॉर यू, आपको कुछ मिला, कुछ टेक अवे है? यस मैम, सेशन से काफी अपने अंदर ऐसी चीजें कई विकसित करने का मौका मिला है और आगे करके इसको तुरंत अपने जीवन में अप्लाई भी कर सकते हैं। गुड। एक मैम, एक चीज ये पूछनी थी कि इन सब के साथ मॉरल वैल्यूज के साथ साथ भी कुछ ऐसे पॉइंट भी रहते हैं जिससे मतलब स्टूडेंट्स को अपना करियर पे भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल आगे चल के करियर को लेकर के एक सेशन मैं ऐसे चाह रहा था कि बिल्कुल सिंह सर अगर अलाउ करेंगे और बाद में रखेंगे तो हम लोग एक करियर पे भी हम लोग सेशन रखेंगे। इंटरव्यू कैसे फेस करते हैं, इंटरव्यू स्किल्स पर एक बहुत अच्छा सेशन मेरा ऑलरेडी होता रहता है। मैम करियर इंटरव्यू डेवलपमेंट कैसे पे फेस करें। हाँ जी। मैम, क्योंकि करियर बनाने में एक तो बच्चे का अपना खुद का एक मेहनत और पीछे उसकी फैमिली का कितना हाथ रहता है बच्चे के करियर को लेकर। जी क्या फैमिली का सपोर्ट बच्चे करियर पे इफेक्ट करता है बिल्कुल और करता है। बच्चा कितना अपना पोटेंशियल दे रहा है, लेकिन तब भी अगर उसका करियर बिल्ड नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं फैमिली उसके पीछे कोई बहुत ज्यादा एक इशू बन रही है। फैमिली भी ऐसे बनती जरा है, उसकी खुद भी चीजें होती हैं बेटा, ये सब समझने की यस बात है। हम लोग कई बार होता है कि एक्सटर्नल लोकस जिसको हम लोग कहते हैं साइकोलॉजी में, हम एक्सटर्नल फैक्टर्स पे बहुत ज्यादा जोर दे देते हैं। परिवार साथ नहीं दे रहा, परिस्थितियां ठीक नहीं है जी, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता जी, टीचर्स अच्छे नहीं है जी, कॉलेज अच्छा नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं होती, ब्ला 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 ब्ला। हम एक्सटर्नल बहुत ब्लेम करते हैं। बट लेट अस लुक इनसाइड आल्सो ना। कई बार होता है कि हम ऐसा Yes, करियर लेके चले जा रहे हैं जिसकी क्षमता हमारे अंदर नहीं है। हम डॉक्टर नहीं बन सकते हैं तो हम काहे को डॉक्टर के पीछे हम नीट का एग्जाम दिए जा रहे हैं, सिविल्स की तैयारी किए जा रहे हैं। हो सकता है हमें कहीं और पहुंचना है जिसका अभी हमें समझ नहीं आ रहा है। करेक्ट। तो बहुत सी चीजें बेटा, इन सब चीजों के बारे में बात करी जाएगी नेक्स्ट और आगे सेशंस जो भी होंगे उस पर हम लोग बात। हाँ जी अवंतिका, एनीथिंग? अवंतिका बताओ बेटा, कुछ मैम क्वेश्चन है? मैम मुझे तो हर सेशन में मेरे सारे सवाल के जवाब मिल जाते हैं। दैट इज सो स्वीट ऑफ यू बेटा, दैट इज सो स्वीट। पिछली बार मुझे सिखाया था ना कि किस तरीके से हम जो चाहते हैं वो चीजें करें, तो मैंने उसे काफी उतारा है। वेरी गुड वेरी गुड। आर यू हैप्पी, आर यू सेटिस्फाइड?
मैम जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि आपने बताया था कि तुम्हें क्या पसंद है तुम वो करो। हाँ, तो जैसे मेरा कैंप के लिए मुझे सेलेक्ट किया गया, तो मैं खुश थी बहुत कि मुझे सेलेक्ट किया गया यूपी से, लेकिन मैं डर रही थी कि घर से मुझे परमिशन नहीं मिलेगी। मैंने हाँ, अपने टीचर को कॉल किया, कहा बेटा घर से मत पूछो, हाँ बोल दो। हाँ, हाँ, और फिर मैंने बस घर पे नहीं पूछा, हाँ बोल दिया। उसके बाद बोल दिया, फिर उसके बाद में मैंने घर वालों को पूछा नहीं, मैंने बोला मैं जाऊंगी तो जाऊंगी। फिर मैं गई और मैंने बहुत एंजॉय किया अपने लाइफ में, मतलब Very बहुत nice. ज्यादा वो वेरी नाइस। मैं आपके इस डिसीजन के लिए आपको मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहूंगी बेटा, माता पिता को पूछा नहीं, आपने डिसीजन लिया, ठीक है, मगर माता पिता को अगर आपने इन्वॉल्व किया होता, पॉजिटिवली कम्युनिकेट किया होता, बेटा देखो हम लोग जानते हैं, हम लोग के अंदर डर रहता है कि अगर हम मम्मी को बताएंगे, पापा को बताएंगे, हो सकता है वो मना कर दें, हो सकता है हमें ना माने, हमें ना जाने दें, डर है। लेकिन अगर हम उनको पॉजिटिवली अपने जीवन में इन्वॉल्व करेंगे ना बेटा, बैठकर कम्युनिकेट करेंगे, और ये जरूरी है क्योंकि वो भी हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ना, तो उनको भी हमें इन्वॉल्व करके चलना। आगे कोई भी डिसीजन लो। हाँ बोलो। मैम जब प्रिंसिपल सर ने उनको बताया हाँ, कि तब उनको फील हुआ कि नहीं मेरा बच्चा बहुत हाई लेवल पे गया है, Good, तब उन्होंने good. allow कर दिया, So out ये नहीं गए। they must be feeling very proud of you. Very good, very good. Congratulations Avantika, congratulations. Thank you बेटा। कविता शर्मा प्लीज वीडियो ऑन करें अगर आप हैं। प्रियांश आर यू देयर? Yes, ma'am. हाँ प्रियांश, कुछ कहना चाहते हो बेटा? It was such a good session, ma'am, and I'm very glad कि आपने हम लोग के साथ link share किया and you allowed us to be a part of such an illuminating discussion. And no questions. अगर questions होंगे भी आगे तो आपसे पूछ लेंगे personally. आप तो हमारे साथी हो, कोई दिक्कत नहीं, ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच प्रियांश। कविता नहीं है यहाँ पर, एंड हु इज दिस? भास्कर राव, वीरेंद्र कुमार ठक्कर, एनीवन हु वांट्स टू आस्क एनीथिंग, से समथिंग, या फिर सेशन एंड किया जाए। सिंह सर क्या परमिशन है, बताइए। सिंह सर आर यू देयर? And your every session is so motivating. I'm really fascinated about it, and Thank you, I'm sir. really thankful to you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank So you we very will much. certainly keep another session Thank where you. we will discuss remaining things. Okay? Sure, Correct. sure, sir. Okay, ma'am. Okay, Thank you so thanks much. all of you. All the Thank you, best. ma'am. Best feedback wishes, form, please best fill that wishes. also. Thank you. Bye bye. Good night. Good night. Bye. Thank you. Bye. Bye.